Students, welcome to the next video of our subject operation research. In our last video we had solved numericals based on transportation problem. In our this video we will learn assignment problems prepared by Assistant Professor Sumit Singh Sekarwar, Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bhad, Gandhinagar. These are the few topics which we are going to cover in our video. We'll begin with the introduction. We'll see the assignment problem and its solution. We'll see some special cases. We'll see the maximization problem, the unbalanced assignment problem. We'll also see the alternative optimal solution restriction on assignments, traveling salesman's problem. तो आज की ये जो हमारा वीडियो है, आज हम वीडियो में सिर्फ कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ ही देखेंगे। आज हम असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या है, कैसा है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसे कहाँ पे यूज़ करना है। असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए जो हमारी बेसिक मेथड्स हैं वो कौन कौन सी हैं। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सो नाउ लेट अस सी द इंट्रोडक्शन। द असाइनमेंट प्रॉब्लम डील्स विद allocating various resources to various activities on a one-to-one basis, such that the number of operations are to be assigned to an equal number of operators where each operator performs only one operation। मतलब हमने ट्रांसपोर्टेशन में देखा था, हम वहाँ पे m क्रॉस n जैसा मैट्रिक्स मिलता था, राइट। लेकिन यहाँ पे हमें m क्रॉस n जो मैट्रिक्स मिलेगा, सो m और n की वैल्यू सेम होने वाली है, राइट। सो यू कैन से दैट इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, बट generally we are not using transportation problem to solve it because we are not getting efficient answer। हमें मतलब परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, ठीक है। तो हम उसको इस मेथड से मतलब हमारी जो असाइनमेंट की प्रॉब्लम है वो इस मेथड से ट्रांसपोर्टेशन से सॉल्व नहीं करते। इसके अलावा हम सिंप्लेक्स मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन को असाइनमेंट को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा रिग्रेस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, let us suppose an accounts officer has 4 subordinates and 4 tasks, and the ordinates differ in efficiency and take different time to perform each task, ठीक है। So if one task is to be assigned to one person in such a way that the total person hours are minimized, the problem is called assignment problem। तो यहाँ पे हमें मेन क्या करना है, हमारी जो भी टास्क है, जॉब है, ठीक है, और वो जो करने टास्क पूरा कंप्लीट करने वाले हैं, मैन पावर है, उसको हमें रिड्यूसिंग टाइम एलिमेंट में बनाना है। लेट अस सी द असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन। सो आवर फर्स्ट स्टेप, दिस फॉलोज as we know that, as I've been told you, it is a special type of transportation problem in which the number of sources and destinations are equal. Let us consider n person and n jobs। तो हमारा जो मैट्रिक्स रहेगा वो कैसा रहेगा, 1-to-1 बेसिस पे आप करोगे तो n क्रॉस n का मैट्रिक्स हमें मिलता है, जिसे कॉस्ट मैट्रिक्स भी कहते हैं। सो अवर मैट्रिक्स इज लाइक दैट कि 1 2 3 up to n persons and we have n number of jobs, so we are allocating a person to a particular task so that we can complete that task, where Cij, ये जो Cij है, it represents the amount of time taken by ith person to complete the jth job। Now let us consider Xj denotes the jth job assigned to a ith person। So mathematically we can write minimization is equals to summation from I is equal to 1 to n and product of Cij into Xij, where I is equal to 1 to n and j is equal to 1 to m, and also which subjects to the हमारी जो constraint conditions होंगी वो Xij is always greater than equals to 0। The most efficient method to solve assignment problem is Hungarian method। So ये Hungarian method जो है वो most efficient method है, जिसकी मदद
पाते हैं. So let us see the few steps. So these are the few steps. In our first step, we will check whether the given matrix is square. If not, it will be made. We need to make it square by adding a suitable or dummy rows or columns. Locate the smallest cost in each row of cost matrix. Subtract the smallest element of each row from every element of that row. हमें जो हर एक रो में से जो लीस्ट कॉस्ट है उसे एलोकेट करना है, ठीक है, उसको लोकेट करना है और उसको डिडक्ट कर देना है दूसरे एलिमेंट्स में से. फिर हम क्या करेंगे, इन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स, जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स बन के आ रही है, विल लोकेट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन ईच कॉलम. अब हमें पूरे कॉलम में से चेक करना है कि छोटा कौन सा है, और वो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे हम कॉलम्स के दूसरे एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे. इन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स सर्च द ऑप्टिमम असाइनमेंट एज फॉलोज. हमें ये चीज़ें चेक करनी है. वी नीड टू एग्जामिन द रोज सक्सेसिवली अंटिल अ रो विथ एग्जैक्टली 1 0 इज़ फाउंड. ऐसी रोज़ हमें फाइंड करनी है जिसमें एटलीस्ट हमारा एक ज़ीरो बन जाए, ठीक है. अब अगर हमें एक ज़ीरो मिल जाता है तो हमें वहाँ पर रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेना है, और उस रो में जो कॉलम है उसमें से जीरो को हमें पास ऑन कर देना है, क्रॉस कर देंगे हम. विल रिपीट द प्रोसेस of step 1 for the columns of the resulting cost matrix. If a row or column of the reduced matrix contains more than 1 zeros, so we'll arbitrarily choose a row or column having a minimum number of zeros. हम किसी भी एक को चूज़ कर सकते हैं आर्बिट्रली, ठीक है, और हमें वापस से सेम 1 2 3 प्रोसेस को रिपीट करते आना है. हमें जो रो और कॉलम है उसको एलिमिनेट करते आना है. इफ़ ईच रो और कॉलम हैज़ वन एंड ओनली वन असाइंड ज़ीरो, सिर्फ एक और एक ज़ीरो हो तो हमें वहाँ पर रेक्टेंगल ज़ीरो बना देना है. ज़ीरो बना के उसको रेक्टेंगल बनाना है. अदरवाइज वी नीड टू मूव टू फर्दर स्टेप्स. ड्रॉ द minimum number of horizontal and vertical lines through the all zeros. फिर हमें वहाँ पर टिक मार्क करना है जो भी असाइन नहीं हुई है. We'll need to tick marks the columns which the zeros is marked rows. We need to tick mark the rows which have assignments in the marked columns. Then tick mark the columns. We'll need to draw a straight line through the unmarked rows and column marks. We need to revise the cost matrix. We need to find the cell smallest element not covered by any of the lines. We need to subtract all the uncovered line and add it to the elements at the intersection of two lines. आज हम एक बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे इसी पर, बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल देखेंगे. नेक्स्ट वीडियो हम थोड़े टिपिकल एग्जाम्पल पर जाएंगे. तो आज का हमारा न्यूमेरिकल है, A computer center has 4 expert programmers and needs to develop 4 application programs. The head of the computer center estimates the computer time in minutes required by the respective expert to develop the application of the program. So ये टेबल हमारे पास दिया है कुछ इस तरह से. We need to find the minimum time required to develop the application program. ये हमारा कुछ टेबल दिया है जिसमें हमारे पास 4 प्रोग्रामर्स हैं और प्रोग्राम्स ABCD है हमारे पास. तो इसमें से हमें कौन सा जॉब किसे असाइन करना है सो दैट वी कैन रिड्यूस द मिनिमम वर्क, वो हमें कैलकुलेट करना है. सो लेट अस बिगिन विद इट. फर्स्ट ऑफ ऑल विल ड्रॉ आवर मैट्रिक्स. हमने जो हमारी मैट्रिक्स थी वो बना ली है. इसके बाद हम क्या करेंगे, जो मिनिमम एलिमेंट है उसे माइनस कर देंगे. तो अपन ने देखा था लास्ट उसमें इन आवर फर्स्ट रो 80 वॉज द लेस एलिमेंट. 80 जो था
वो लेस एलिमेंट है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है among all values. So we'll subtract 80 from 120, 100, 90 and 80. हम ऐसा करेंगे, इसीलिए फाइनली सारी रोज़ और कॉलम के लिए, सारी रोज़ के लिए हम मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो विल गेट दिस टेबल. ये हमें फॉर्म मिलेगा मैट्रिक्स का. यहाँ पे आप देखोगे तो मिनिमम वैल्यू सी पर थी, 80 था, वो हमने माइनस किया तो 0 बन गया. ठीक है, इसी तरह से हम रिड्यूस करते आए. अब हमें हर एक कॉलम में से जो लीस्ट वैल्यू है उसे कॉलम के हर एलिमेंट में से माइनस करना है. तो आप एक ही कॉलम देखोगे तो एक ही कॉलम में 10 इज़ लेस, बी की कॉलम में आपको अगेन 10 इज़ लेस, सी की कॉलम में आपको 0 मिलेगा और डी की कॉलम में आपको 0 मिलेगा. तो हमें वो सब्ट्रैक्ट करने हैं उसके सारे एलिमेंट्स में से. सो इन अवर नेक्स्ट नाउ वी विल सब्ट्रैक्ट द मिनिमम एलिमेंट ऑफ द कॉलम फ्रॉम एवरी एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम इन द रिजल्टिंग मैट्रिक्स. तो हम डिडक्ट करेंगे. सो विल गेट दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स. हमें ये मैट्रिक्स मिल जाएगा. अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर में हमें क्या करना है. सो वी विल मार्क विथ एटलीस्ट 1 0. जहाँ पे हमारी रोज चेक करेंगे, जहाँ पे हमें एटलीस्ट 1 0 मिल रहा है वहाँ पे 0 को मार्क करेंगे. तो आप देखोगे नेक्स्ट उसमें हमें क्या करना है कि हमने मार्क करेंगे जहाँ पे एटलीस्ट 1 0 मिल रहा है. तो हमारी जो फर्स्ट की कॉलम है, रो है, वहाँ पे एटलीस्ट 1 0 मिल रहा था तो हमने वो मार्क किया. और उस में से जो 1 सी की कॉलम थी, सी की कॉलम में से उस 0 को हमने डिलीट कर दिया, कैंसिल से, क्रॉस से मार्क कर दिया. अब हमारे पास देखेंगे तो सेकंड जो कॉलम है बी की, उसमें एक 0 है हमारे पास, एटलीस्ट एक 0 है. और एक ही कॉलम में 3 0 हो रहे हैं तो हमें एक ही कॉलम नहीं लेनी है और डी की कॉलम नहीं लेनी, क्योंकि वहाँ पे एटलीस्ट 2 0 हो रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके पास बी में सिर्फ एक ही 0 मिल रहा है. तो आप याद रखें हम पहले रो वाइज गए हैं फिर कॉलम वाइज आ रहे हैं. तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट, उसमें हमारा जो 0 मार्क करेंगे तो इस तरह से हम 0 को मार्क कर देंगे और उस रो में से जो 0 था उसको डिलीट कर देंगे. अब आप देखोगे तो हमारे पास नेक्स्ट उसके लिए 2 0 आ रहे हैं फर्स्ट कॉलम में, 2 0 आ रहे हैं हमारे सेकंड की रो में. ठीक है, सो विल चूज़ आर्बिटरीली. हम कोई भी एक 0 ले लेंगे. तो यहाँ पे मैंने ए के साथ में जो था उसको 0 को ले लिया और मार्क कर दिया. ए के साथ ए को मार्क करोगे तो नीचे के जो कॉलम थे ए की कॉलम वाले सारे 0 डिलीट कर दोगे. आप डिलीट करोगे फिर आप जो 2 0 वाला था उस कॉलम में से एक ले लोगे. दिस इज हाउ वी वर एबल टू सॉल्व. अब यहाँ पे हमने जो मार्क किया था, जहाँ पे हमने 4 रेक्टेंगल ड्रॉ किए, हमने क्या किया कि फर्स्ट रो में से हमने चेक किया कि 0 एक 0 है एटलीस्ट. तो 1 सिंगल 0 था तो वो हमने मार्क कर दिया और उसकी जो कॉलम में 0 था उसको हमने डिलीट कर दिया. फिर हमने कॉलम को चेक करा तो एटलीस्ट सेकंड बी की जो कॉलम थी उसमें एक 0 मिल रहा था, हमने उसे मार्क किया और उस रो में जितने भी 0 थे हमने डिलीट कर दिए. नेक्स्ट प्रोसीजर के लिए हमने सेकंड रो में जो था तो वो 0 ले लिया और उसको डिलीट कर दिया. फोर्थ के लिए हमने क्या किया, जो फाइनल 0 बच गया उसको हमने रेक्टेंगल से इंडिकेट कर दिया. आफ्टर डूइंग दैट, ये जो 4 0 हैं वहाँ पे हमारा जो मेन टेबल था उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेक करेंगे हम. तो हमारा जो पैटर्न बना, जहाँ पे हम बना सकते हैं सबसे मिनिमम वर्क ऑक्यूपाई कर सकते हैं. सो फर्स्ट प्रोग्रामर को सी प्रोग्राम दिया जाए, सेकंड प्रोग्रामर को हम ए जो प्रोग्रामिंग है वो देते हैं,
थर्ड प्रोग्रामर को हम डी का प्रोग्रामिंग देते हैं और फोर्थ प्रोग्रामर को हम बी का प्रोग्रामिंग देते हैं। सो हमें मिनिमम टाइम मिल जाएगा। तो आप दोनों को कंपेयर करेंगे। हमने फर्स्ट को सी दिया, टू को ए दिया, थर्ड को डी दिया, फोर्थ को बी दिया। दिस इज़ हाउ वी विल गेट द मिनिमम आंसर। जहाँ पे हमारे रेक्टेंगल में ज़ीरो था वो सारे हमने लोकेट किए। तो आप देखोगे सो फर्स्ट को हमने सी दिया था, मतलब 80 मिनट्स लगती है उसके लिए। सेकंड को हमने ए दिया था, उसको भी 80 मिनट्स लगेगी। थर्ड को हमने डी दिया था, उसको 100 मिनट्स लगेगा। और फोर्थ को हमने बी दिया, सो दैट ही विल टेक ओनली 90 मिनट्स। सो हमारा जो टाइम था, मिनिमम टाइम मिल जाएगा 350 मिनट्स। सो इन 350 मिनट्स वी विल the head of center will get the developed program. नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसे ड्रॉ करनी है वो देखेंगे। वहाँ पर मैं आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने को दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।